articles daily. Yeah. So, guys, this meeting is especially being conducted, as mentioned, to understand the nuances of the articles being deciphered. Now, the point that we are trying to understand in this particular session is that not everything that you read is worth reading. Suppose there is this passage, this is suppose आपका paper है, ठीक है, ये सारी चीजें given है. These are the things mentioned. Now you need to understand not everything that you are reading in this scenario, ठीक है, ये सारी चीजें जरूरी नहीं है कि इसमें ऐसा कुछ हो कि everything you have to read. No, not at all. Suppose you are reading something and in that particular prospect, while reading you may encounter some of the exemplifications, some theories, some hypotheses, and number of factors could be there, right? So particularly what I mean to say is that shuru mein, the introductory part of the passage, the second paragraph, the third paragraph, fourth paragraph, fifth paragraph, and if there is, then sixth paragraph, which is again the concluding tone. आपको इसको प्रायोरिटाइज करना है, आपको इसको प्रायोरिटाइज करना है. You can skip or skim या scan ये वाले parts. That is how a manager reads. Try to act as a manager right from the moment you are starting your preparation. Why am I saying that is because आपने पढ़ा, suppose अभी हम एक article देखते हैं ये वाला, ठीक है. See what a student will do, what an aspirant will do, ठीक है. I'm telling them aspirant's mind. 5 years ago, the dramatic toppling of Edward Colston's statue in Bristol, his likeness cast in the harbour, marked a pivotal moment. Predominantly white protesters drew sweeping attention to the cruelty of African enslavement, the wealth it generated that propelled Britain's global rise, and the enduring legacy of racism, which had surfaced tragically with the murder of George Floyd just 2 days earlier. Now, that was how an aspirant would read. Okay, supposedly, I'm not an aspirant. We are not an aspirant. What we are some sort of manager of some company. ठीक है, आप लोग एक manager. I'm gonna read how a manager is gonna read. ठीक है. अच्छा, why I can say manager, because I have dealt with these things before. तो थोड़ा बहुत तो देखो आइडिया है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो. 5 years ago, dramatic toppling, Colston, बकवास, Bristol, बकवास, marked a pivotal movement. मतलब हम क्या किए, इसको हटा दिए, ये पूरे पार्ट को. ठीक है. The dramatic toppling of some person named X marked a pivotal moment. Predominantly, white protesters drew sweeping attention to the cruelty of African enslavement. ठीक है, wealth जो generate होती है, propelling Britain's global rise, enduring legacy, जो surface करती है tragically, किसके साथ, with the murder of George Floyd just days earlier, has saved around 45% of my time. हम अपना 45% टाइम ऑलरेडी बचा चुके हैं. एंड इफ आई एम डूइंग दैट इन द इंटरफेस ऑफ कैट, इन द इंटरफेस ऑफ जैट, इन द इंटरफेस ऑफ एनमैट, आपको मान के चलो इसमें 40 मिनट मिला सेक्शन के लिए, इसमें आपको मिला आई गेस प्रिंस व्हाट इट वाज 55 मिनट्स, और लास्ट टाइम क्या था? I think there's no time limit in here. Like, yeah, but you can invest around 50 minutes, hardly. ओके, यू आर सपोजिटली आई एम सेइंग यू आर सेइंग 50 मिनट्स इन दिस, ठीक है. एंड एनमैट में भी कुछ रहता है 30 30 40 minutes around, roughly. 50 Yeah. मिनट्स, ओके, रफली 50 मिनट्स. अब आप ये देखो, अगर आपने 45% विच इज क्लोज टू 50% टाइम, ठीक है, अगर आप ऐसे ही पूरे पैसेज को रीड करते ऊपर से लेकर के नीचे तक बाय अंडरस्टैंडिंग द रस, व्हाट यू विल डू, आप पूरे पेपर के पैसेजेस को 20 मिनट्स में रीड कर लिए, ठीक है. 20 मिनट में आपने रीड किया, और आप क्या करो, 20 मिनट में आपका रीडिंग पार्ट आ रहा है, मतलब उसमें आपके क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, उसमें आपका पैसेज भी आ रहा है, ठीक है. 20 मिनट में ये दोनों चीज़ होंगी. लॉजिक बिल्डिंग के लिए आपकी ज़्यादा से ज़्यादा गए 5 मिनट, ठीक है. और इस पूरे चीज़ को डील करने के लिए, इस पूरे इंटरफेस को डील करने के लिए आई वुड से मुश्किल से आपके गए 6 से 7 मिनट. ओवरऑल इफ आई से हमने 30 से 32 मिनट्स का इफेक्टिव टाइम डेडिकेट कर दिया. नाउ आई एम लेफ्ट विथ 8 मिनट्स. पॉइंट इज, आप जब रीड करते हो ना, लुक फॉर द बुलेटिन पॉइंट्स. ना व्हाट आर बुलेटिन पॉइंट्स, वो बताते हैं, चलो. Prince, if you would Right, have Casey. to, yeah, So yeah, yeah. Smriti noted it right. So in NMET, we get around 28 minutes for the language section, LS 28
odd minutes. ओके ओके, फाइन फाइन फाइन। इरेजर कैसे आता है इसका? आई डोंट नो हाउ टू इरेज। आ गया। गाइज इतना पार्ट आप लोगों को क्लियर है कि नहीं, पहले ये बताओ हमको, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्लियर है सर। तो क्लियर है, बट एक डाउट है सर, आप जो इतना जल्दी रीड करें, मतलब वैसे हम ट्राई करते हैं सर तो समझ नहीं आता। ओके सिद्धांत, द वेरी फर्स्ट थिंग, गाड़ी को 0 से 60 पहुंचने में समय लगता है। अभी आप 10 की स्पीड में चल रहे हो, ट्राई टू मेंटेन दैट कंसिस्टेंसी, ठीक है? जब कंसिस्टेंट यस हो सर। जाओगे उसके बाद जब डिसिप्लिन आएगा उसके बाद आप ऐसे मैन्यूवरिंग करना है ना। ये जो आप कर रहे हो, जैसे आज आपने किया कि जल्दी जल्दी रीड कर लेता हूँ, दैट आई वुड से दैट इज अ सॉर्ट ऑफ स्टंट यू आर ट्राइंग टू मेक, ठीक है? डोंट प्लीज डू दैट। वो आपको बैकफायर करेगा एग्जाम के दिन। अभी नहीं समझ में और आया? सर एक और क्या? सर, ये पैसेज रीड करते समय सर इसका कुछ नोट डाउन करें या बस रीड करके छोड़ दें, मतलब वैसे आज बस आज रीड अपन करते देख हैं कि लेंगे, क्वेश्चन आज अपन पढ़ते वो हैं? सारी चीजें देख लेंगे, ठीक है? आज अपन सारी चीजें देख लेंगे। कमिंग टू प्रिंस, Prince, if you Yeah. could add something to the level of difficulties that we are adjusting. Yeah, so as someone was asking recently regarding the difficulty of the articles, like some people are not able to comprehend the article and all that. So we have discussed, like I and Casey specifically regarding the difficulty part, and I think many of the people are beginners here who are just starting with the prep, and BIS is something that requires you hours of reading, and that too every day. I would say, like it should be a must, like on the to-do list every day. And in terms of the difficulty, I have felt that for many people, and I'm adjusting the difficulty accordingly. Like I'm bringing the difficulty a notch lower as what it used to be, so that people can just get acquainted with the reading habit at first, and eventually we can increase the difficulty level as the time progresses. So people will get much comfortable there. So I think that was about the difficulty part of the article. Okay, coming towards the next point, guys. आप लोगों ने एक चीज और स्टेट की थी दैट हम लोग जब पढ़ते हैं तो हम क्या होता है हम लोग के साथ कि हम लोग पढ़ रहे हैं, मान के चलो हमने ये पैराग्राफ पढ़ा, ठीक है? हमको इसका सारा क्रक्स समझ में आ गया। सपोज इसका क्रक्स एक्स वाई जेड इज लीडिंग टू द डिवाइस ऑफ एबीसी, ठीक है? ये इसका क्रक्स है। अब आपने सेकंड पैराग्राफ पढ़ा। Now ABC, when they died, they before dying they preserved a child जिसका नाम था DEF, ठीक है? अब आपने इसको किया, ठीक है? DEF, he was raised somewhere else in some another universe, ठीक है? Because due to some sort of propulsion इन लोगों ने क्या किया था, अपने बच्चे को कहीं और ट्रांसपोर्ट कर दिया था। एंड देन कंक्लूडिंग 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 करते करते यहाँ पे एक कंक्लूजन आ जाएगा दैट ideally we would say that DEF is hope of humanity, ठीक है? DEF हमारी ह्यूमैनिटी की होप है, हमने ये कंक्लूड कर दिया। अब इसमें देखो क्या चीज हमें काम आई, ठीक है? हमें पहली चीज ये काम आई दैट आई वाज वेरी मच वेल वर्स्ड with the nuances, with the detailings of reading. What do I mean to say from that is, tell me how many of you have seen this movie named Man of Steel, which was starring the lead actor Henry Cavill by DC? कितनों ने ये मूवी देखी है? Nobody, have you watched? Guys, I'm asking something. I नो need a सर। response. नो सर। Why am I mentioning a movie which is totally out of context from this is, हमने वो मूवी देखी थी, ठीक है? हमें मूवी से क्या पता चला था कि भाई जो उसके सुपरमैन के जो माँ बाप रहते हैं, ठीक है? सुपरमैन के जो माँ बाप रहते हैं वो क्या करते हैं, कहीं बच्चे को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं अर्थ में। यहाँ पे उसके कोई और माँ बाप रहते हैं, यहाँ उसके माँ बाप कोई और बन जाते हैं, फिर ये उसको बड़ा करते हैं, ये सन से फिर रोशनी लेता है और फिर ये बढ़ जाता है। हमको ये पूरा नैरेटिव पता था, जिसके बेसिस पे हमने अपनी ही कहानी की एक रचना कर दी कि एक्स वाई जी था, वो मरे तो एबीसी आया, एबीसी के डिमाइस से फिर क्या हुआ, डीईएफ निकला जिसका नाम था कुछ एक्स वाई जेड, कुछ भी उसका नाम हो गया, ठीक है? फिर डीईएफ क्या किया, वो उसको दूसरे यूनिवर्स में भेज दिया गया था। Now the reasoning that I'm putting over in this is that I was given an article to deal with, but what I'm creating in my mind is that I'm creating my own understanding. The crux of this entire thing is that you have to read the article come what may, you have to read whatever is given to you come what may, but the understanding part,
दैट इज योर पार्ट टू डील विथ। आप उस अंडरस्टैंडिंग को कैसे मेंटेन करते हो, आप उस अंडरस्टैंडिंग को कैसे डेवलप करते हो ना, दैट इज इन योर प्लेट ना। एंड यू कैन नॉट अज्यूम एंड यू कैन नॉट प्रिज्यूम दिस फैक्ट कि यार अगर मैं ऐसे पढ़ूंगा तो मेरा ये प्रोग्रेस होगी। द ओनली शॉर्टकट फॉर गेटिंग सक्सेस इन दिस इज टू गो द लॉन्ग वे। उसी के बाद आपको आएगा, ठीक है। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल रीड एन आर्टिकल, आई विल डू थ्री थिंग्स। आई विल रीड द आर्टिकल विद द माइंडसेट ऑफ एन एस्पिरेंट, आई विल रीड द आर्टिकल विद द ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू, I'll read the article as it is desired to read in the exam scenario. Is it clear, guys, this much? And when I say is this clear, I need a response. ठीक है। यस सर यस। आप लोग नहीं दोगे, आई वुड से सीधा हमें कोई मतलब नहीं, हम आगे बढ़ जाएंगे। आई एम नॉट गोना रिपीट दैट पार्ट अगेन, ठीक है, क्योंकि रिस्पॉन्स के लिए हम वेट किए, आप लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। Someone was saying, a user named Yash, he was saying कि आर्टिकल 3 बहुत डिफिकल्ट है आज का। I'm gonna go towards आर्टिकल 3 कि फर्स्ट वाला ऐसे भी छोटा ही है, मतलब FC 12 है ना उसका, हाँ 12 है। दिस डिमॉन्स्ट्रेट्स कि यार उसका ना रीडेबिलिटी लेवल कितना है, ठीक है, ये फ्लैश किनकेट लेवल। एनी आर्टिकल, सॉरी यार ये हट तो गए। एनी आर्टिकल or any passage that is below the level of 15 can be considered as it has a good reading या good understanding nuance। उसके पास एक अच्छा खासा आप कंसिडर कर सकते हो कि आप उसको रीड कर सकते हो। एनी आर्टिकल विच इज क्लोज टू 15 या एग्जैक्टली 15 दैट इज कंसिडर्ड एज अ टफ वन। Any article or any passage that is considered above 15 that is considered as university level। ये तीन बाइफर्केशन होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये फ्लैश किनकेट लेवल इसीलिए दिया जाता है ताकि आप लोग ये समझ पाओ कि भाई आखिर ये आर्टिकल किस लेवल का था, ठीक है, और मेरी औकात कितनी थी और मैंने कैसे परफॉर्म किया, ठीक है। अगर आपको इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, आई वुड से इवन इफ यू आर गेटिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आर्टिकल और द पैसेज क्लोज टू 60%, नॉट इवन 60%, क्लोज टू 60%, आई वुड से ठीक है, यू कैन गो टुवर्ड्स द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस में जाओ। अगर ये बिलो 60% है देन इट इज अ प्रॉब्लम। उसमें क्या करना है, यू हैव टू रीड एवरी लाइन, ठीक है, सारी लाइंस को पढ़ो डिटेल में, बहुत अच्छे से समझो, एंड देन उसके बेसिस पे धीमे धीमे लेवल को इंक्रीज करो। आज मेरा अगर मान के चल भाई 55 है लेवल, मैं क्या किया, उसको अगले दिन 56% किया, मैं अगले दिन उसको 57% किया, मैंने अगले दिन उसको 58% किया, ठीक है। करते 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 जब आप 60 में पहुंच जाओ, स्टार्ट क्रिएटिंग क्वेश्चंस इन योर माइंड, ठीक है। स्टार्ट क्रिएटिंग, स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस कि मुझे आखिर करना क्या है, करना क्या था इस आर्टिकल में। व्हाट वाज द वन थिंग दैट वाज यूनिक अबाउट दिस आर्टिकल, व्हाट वाज द वन थिंग दैट आई शुड हैव डन had I been the author, had I been the examiner, what I would be doing considering that this is the article that I'm getting in the exam scenario, what should I be doing in that case? Guys, is this clear, yes or no? यस सर। Okay, fine. Moving ahead. Avinash, switch on your mic. Avinash Gupta. What Yes, yeah, exactly do yes. you understand when I say comprehension? Avinash, I'm asking a question, that means you have to reply with an answer and a reasoning. Yeah, Kesav's friends, and I think Avinash just left the meeting. Oh, great. Great. One day I'm gonna take him out from the group also if he maintains this attitude of his. Okay, अभी तक किसी भी चीज को, किसी भी थ्योरी में कोई डाउट आया? नो सर। Okay, fine. You guys have, हाँ हाँ बताओ। सर सर। सर ये वीकेंड इम्पोर्टेंट है क्या, मतलब कर लें या छोड़ दें सर? क्या करना? सर वो क्या वो क्या? मेरा नहीं सर। देखेंगे देखेंगे, बताएंगे ना, अभी आर्टिकल पढ़ने तो दो। आर्टिकल 3 इसीलिए उठाया गया है क्योंकि ये एक डिफिकल्ट आर्टिकल है।
ठीक ओके है। सर, ओके। अभी अपन देखेंगे, यू गाइज हैव, आई वुड से आप लोगों को यहाँ तक पढ़ना है पूरा। यू गाइज हैव ओनली 40 seconds। स्टार्ट। टाइम्स अप। हु विल टेल मी कि यार आखिर आर्टिकल कह क्या रहा था? कौन बताएगा? मतलब अभी तक जो हमने पढ़ा उसके बेसिस पे। बताओ। सर कोई फीमेल है इसमें? उसका कोई ऑपरेशन वगैरह होता है? कोई डॉक्टर के बारे में बताता है उसका, मतलब बहुत फेमस है, ऐसे ऐसे टाइप से कुछ बता रहे हैं तो। नॉट वेरी मच कन्विंस्ड। समथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस। चलो कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं, सीखेंगे अपन, ठीक है। सीखना इज द मेन फैक्टर इन दिस। अभी 2 मिनट के लिए हम भूल जाते हैं कि यार हमारे सामने टाइमर चल रहा है, ठीक है। यस। केसी, मैं ट्राई करूं एक बार, हाँ मतलब हाँ, प्लीज 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 गो अहेड। मे बी इसमें ये बोल रहा है मिसगाइडेड बाय मेडिसिन, कुछ ऐसा कॉन्टेक्स्ट ये देना चाह रहा है। मिसगाइडेड बाय मेडिसिन। मतलब ये जो बंदी है इसको कुछ प्रॉब्लम थे, एंड देन जो आपको, मतलब ये समवन, मतलब कुछ मेडिसिन का मिसगाइड था जिसकी वजह से इसकी प्रॉब्लम और बढ़ी, शायद समथिंग लाइक दैट। ओके ओके, देन स्मृति, आई एम गोना आस्क यू दिस वन क्वेश्चन, सिंस यू सेड कि मिसगाइडेंस है, ठीक है। व्हाट वाज द ऑथर्स अंडरलाइंग assumption when he was writing this passage? टेल मी। अंडरलाइंग assumption, हाँ जी। What was that? I can hear the clicks of the keyboard. no no, Okay. underlying assumption is that I need to think about it Yeah, please think. That is because what I'm this not class very is good for. at CR, like थोड़ा assumption वाले part में मेरे को दिक्कत आती है। Hmm. Hmm. Okay, so see, you See, said, assumption huh? simply means the author's intent. So you don't need to break your head over it, like what is assumption, and I need to learn about it, and like it's not anything alien or. Like assumption is basically something that is not stated, right? Yeah, right. Like with what intent the author is particularly writing this passage, whole passage down. You need to just find that out. Um, To find So the yeah, author's intent. Yeah, Prince, you were saying something. Please go ahead. no. You should continue. Okay. That's all. See, Smriti, yes, to yes. find what exactly an assumption is, you are given with a premise. Then what happens? आपको एक premise given है to Smriti and to everyone else who do not know what is an assumption. And on the basis of premise, there comes this part named as conclusion. एक premise है, conclusion है. Do you see a gap in this, Smriti? Can you see a gap in this? Yes, yes. This particular gap is what filled by assumption. What I mean to say from this is, premise is a statement upon which the entire narrative is set. ठीक है, ये आपका एक ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड जैसे रहता है जहां पे आपकी पूरी कहानी, सारी संरचनाएं दी होती हैं. कंक्लूजन इज समथिंग दैट यू कैन summarize or that you can deduce on the basis of the arguments presented in that whiteboard. This is whiteboard number 1, this is whiteboard number 2.
अब कंक्लूजन में क्या करना है आपको, इसके बेसिस पे एक बहुत ही कंसाइज, अंडरस्टैंडेबल और रीडेबल वर्जन आपको यहाँ पे देना है, विच शुड कंसिस्ट ऑल द फर्स्ट थिंग इज मेन पॉइंट्स, second is if important, any theory on which any argument is dependent, and the third thing is the conclusion itself. People who don't know, if you want you can please write this down, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प तो करेगा। ये आई गेस वहां आता है हेल्प अपन को, पैरा समरी जो अपन करते हैं। सर ये सेकंड वाला क्या है, मतलब इसमें जो आप बोल रहे हैं? दैट इज अगर असर्शन है किसी का, है ना, डबल कोट्स में अगर कोई चीज है, दैट इज द असर्शन। भाई किसी ने कुछ असर्शन दिया है अपना, ठीक है। सर वहाँ से क्वेश्चन वगैरह भी आता है पैसेज में? सॉरी, वहाँ से सर क्वेश्चन वगैरह भी आता है पैसेज में, हाँ आप जी, बता रहे थे। बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। चलो आगे देखते हैं। हमने ये सारी चीजें तो देख ली, ठीक है। अब अजम्पशन को पकड़ते हैं। कंक्लूजन समझ गए, प्रेमाइज समझ गए, ठीक है। लेट अस सी व्हाट assumption means. Although I have told this thing in critical reasoning, but वापस वो कर देते हैं, रिपीट कर देते हैं। आपने, आपके पास एक ऑथर है, ही व्हाट ही डिड, उसने निकाली अपनी टेबल, ठीक है, और बैठ गया इस टेबल पे, और इसमें कॉपी है इसकी, कॉपी में कुछ कुछ लिख रहा है ये। अब होता क्या है ना, ऑथर के इस दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है, क्या सोच रहा है ऑथर। तो ये जो थिंकिंग है ऑथर की, दैट इज व्हाट अजम्पशन इज, कि यार ऑथर ने ये पैसेज लिखा, क्यों लिखा, व्हाट वाज ही थिंकिंग, व्हाट वाज ही ट्राइंग टू इम्प्लाई, व्हाट वाज ही एग्जैक्टली ट्राइंग टू फाइंड आउट। अब ऑथर पागल तोड़ना है यार कि ऐसे ही बस मजे मजे में उसने क्या किया, चेयर टेबल निकाला और टाइम बर्बाद करने को बैठ के अपना लिखने के लगा। नो, दैट इज नॉट व्हाई द ऑथर हैज डन दिस। ऑथर हैज रिटन बिकॉज देयर वाज अ पर्पस ही नीडेड टू फुलफिल। उसको एक पर्पस फुलफिल करना था, ही वांटेड टू फाइंड आउट समथिंग। अभी देखो ये assumption कैसे रिलेट हो जाएगा इससे। he wanted to find out something, he wanted to clarify something, he wanted to prove something, he wanted to put forth his own viewpoint। ये जिस भी स्टेटमेंट में गिवन होगा, दैट विल बी योर assumption। आई होप एग्जाम के दिन आप लोगों को ये चीज याद रहे, क्योंकि अगर आपके दिमाग में ये सारी चीजें हैं, आपको सारे ऑप्शंस को डील करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपने देखा, ठीक है, आपने समझा, ठीक है। अब मान के चलो ऑथर ने अज्यूम किया यार मेरा एक पर्पस है जो मुझे बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन होंगे ए बी सी डी। एक ऑप्शन होगा जिसमें डी में मेंशन होगा कि यार ये पर्पस है जो कुछ ना कुछ ये प्रूव करना चाह रहा है, या कुछ इस चीज को निगेट करना चाह रहा है। दैट विल बी योर आंसर यार। आपको पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। दैट इज हाउ इजी assumption इज। नाउ व्हाट पीपल डू, पीपल से कि भाई आप एक काम करो, ये है प्रेमाइस हमारा, ये है कंक्लूजन, ठीक है, यहाँ पे एक गैप है, ये है assumption, ठीक है। आपके पास ऑप्शंस हैं ए बी, अरे यार, सी एंड डी। अब पहले आप इसको पढ़ो, फिर इसको निगेट करो, फिर ये अगर कंक्लूजन को हमारे क्रम्बल कर दे रहा है तो ये सही है। सेम चीज बी के साथ करो, सेम सी के साथ करो, सेम डी के साथ। मतलब जो क्वेश्चन
डिमांड करना था ओनली 30 सेकेंड्स, दैट क्वेश्चन इज नाउ टेकिंग 1.5 मिनट्स। अब टोटल इंक्रीज ऑफ प्लस 60 सेकेंड्स यार, 200% का इंक्रीज है इसमें, समझ रहे हो? इज इट क्लियर गाइस? यस सर। तो अजम्पशन को अगर आप लोग इस तरीके से डील करोगे, प्रॉब्लम नहीं आएगी ना। इट कुड बी कि आप लोग के पास और अच्छी थ्योरीज हों और अच्छे आर्ग्यूमेंट्स हों, बट ठीक है, दैट इज योर पॉइंट। हमने जो सीखा, हमने जो पढ़ा, हमने आपको वो बता दिया। प्रिंस, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग इन दिस। Absolutely right. Like whatever you said regarding the assumption part and how we should approach it, I think that was all point on it. एग्जैक्टली भाई, ऑथर और किस तरीके से अपनी चीजों को रख पाएगा? Yeah, ये true. सारी चीजें होगी असम्पशन वाली, कंक्लूजन हो गया, प्रेमाइस हो गया, दैट सॉल्व्स द डाउट ऑफ स्मृति। ठीक है, नाउ कम्स द पॉइंट ऑफ ये अपना सिद्धांत। सिद्धांत, स्विच ऑन योर माइक। यस सर। हैव यू गाइस नोटेड दिस डाउन और टुक अ स्क्रीनशॉट? अगर हो गया, हम लाइक इसको इरेज कर रहे हैं हम। चलो किए तो ठीक, नहीं किए तो भी ठीक, आपका लॉस, हमारा कुछ नहीं जा रहा। हो गया सर, कर लिया नोट डाउन। ओके। और सर ये भी है ना, अपना थ्योरी लगाने पे मार्क्स सर निगेटिव में चला जाता है। नहीं तो अपना क्यों लगा? देखो हमने जो कुछ भी बताया उसमें कहीं पे भी ऐसी कोई चीज थी क्या कि हम ये सोच रहे हैं? एवरीथिंग वाज रिवॉल्विंग अराउंड द आर्गुमेंट ऑफ द ऑथर, उसके आगे हमने कुछ भी नहीं सोचा। हम हर एक चीज जो यस देख सर। रहे हैं वो सारी चीजें डिपेंडेंट है ऑथर्स के क्लॉज पे। ठीक है, इज दिस पार्ट क्लियर? यस सर। ओके, लेट्स सी द फर्स्ट पैराग्राफ। दिस इज द माइंडसेट ऑफ एन एस्पिरेंट। नहीं, एस्पिरेंट क्या ही बताया, तुम लोग खुद एस्पिरेंट हो। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम इन दैट, लेट अस डील दी एक एग्जामिनर का माइंडसेट क्या रहेगा इसमें। ठीक है, व्हाट एन एग्जामिनर माइट बी थिंकिंग हैड ही बीन राइटिंग दिस पर्टिकुलर पैसेज। एग्जामिनर क्या सोचेगा? यार बच्चा ना फंसेगा ऐसी चीजों में जहां पे मैं उसको ट्रैप्स दूंगा। ठीक है, कि उसको लगेगा कि यार हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है, जबकि असलियत में दैट विल नॉट बी रेलिवेंट। आई एम नॉट इवन सेइंग इंपॉर्टेंट, आई एम सेइंग रेलिवेंट। कैसी होती है वो चीज? देखो, हाउ एन एग्जामिनर क्रिएट्स अ ट्रैप इन द एग्जाम इन वियना in the waning days of Feb 1895। now सिद्धांत पूछेगा वेनिंग का मतलब क्या होता है? या तो देखो इसकी दो मीनिंग हो सकती है सिद्धांत, इन द कमिंग डेज, ठीक है, या दूसरी मीनिंग हो सकती है एक गोइंग मतलब फेडिंग अवे। दो ही मीनिंग हो सकती हैं इसकी। इफ समथिंग इज वेनिंग तो क्या समझ सकते हो? लाइक रिलेटिवली उसका एक कंटेक्स्ट पकड़ो। इट इज नॉट ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू डील विथ वोकैब, नो। आप हर बार वोकैब के पीछे भागोगे, वोकैब इज सो मच वास्ट कि आप उसको कभी भी कवर नहीं कर सकते। which is why it is better to not be focused upon vocab but to be focused upon the context। in Vienna in the waning days of Feb 1895 30। अब एस्पिरेंट क्या करेगा ना, एस्पिरेंट बोले सोचेगा अरे यार इसने वेनिंग बोल दिया, अब मैं वेनिंग को अगर कहीं ऐसा तो नहीं, अगर मैंने इसको गलत पढ़ लिया, कहीं मैंने इसकी मीनिंग गलत निकाल ली, मेरे मार्क्स कट जाएंगे। दैट विल व्हाट एन एस्पिरेंट विल थिंक। ठीक है, और वही ऑथर चाहता है, वही एग्जामिनर चाहता है कि एस्पिरेंट यही सोचे, वो इन्हीं चीजों के बारे में सोचता रहे। ठीक है, और असली चीज क्या है उसको वो पकड़ ही ना पाए। दैट इज व्हाट द माइंडसेट ऑफ एन एग्जामिनर इज। सो आइडियली व्हाट्स हैपनिंग इन दिस इज दैट यू आर गेटिंग बेंच, सॉरी गाइस, क्या हो रहा है यार? आइडियली व्हाट यू आर डूइंग इज, आप चाह के ऑथर के लगाए हुए ट्रैप में फंस गए। दिस वाज ट्रैप नंबर 1 सिद्धांत। यस सर। ठीक है, वेनिंग डेज ऑफ फेब 1895। अब देखो कमिंग डेज तो हो नहीं सकता। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमने कंटेक्स्ट को पकड़ा। इन द कमिंग डेज ऑफ फेब 1895 इसकी डिग्री क्या हो गई? फ्यूचरिस्टिक हो गई। ठीक है, प्रिपेयर्ड, दिस इज द पास्ट फॉर्म, to undergo a peculiar operation, peculiar at least by today's clinic sensibilities,
she had presented, had ed, d, have की जगह had लिखा है, had है, have नहीं है, मतलब past participle, अगेन अगेन यहाँ पे पास्ट आ गया, तो इसके बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं, इन द गोइंग डेज, ठीक है, या वीकनिंग बोल सकते हो, या समथिंग लाइक उसका डिक्लाइन आ रहा है, या समथिंग लाइक उसकी डेथ आ रही है, ठीक है, और वो अब मर जाएगा, अब बचेगा नहीं वो, समथिंग लाइक दैट। तो सिद्धांत व्हाट आई डिड नॉट गो फॉर द वोकैब, हमें नहीं पता थी वेनिंग की मतलब क्या होती, बट आई वॉज प्रेटी मच अश्योर्ड कि यार अगर वो बोल रहा है कि वेनिंग है, और अगर वो आगे पास्ट फॉर्म या ईडी फॉर्म यूज कर रहा है, मतलब वो चीजें ऑलरेडी घटित हो चुकी हैं या घटित होना चालू हो चुकी हैं। इतना पार्ट क्लियर है सिद्धांत आपको? यस सर, यस सर। ओके, चलो हमने एक चीज तो पकड़ी, ट्रैप नंबर 1 को कैसे डील करते हैं, विच वॉज कि हमने पकड़ लिया कंटेक्स्ट को अपने। दूसरा ट्रैप क्या करेगा एग्जामिनर, ध्यान से देखो, पहला ट्रैप था ये T1, a 30-year-old woman named EE prepared to undergo a peculiar operation, peculiar at least by today's clinic sensibilities. She had presented with ostensibly mundane complaints: episodic stomach pain, melancholic spells, synchronized menstrual cycle, elements neither rare nor extraordinary. Yet, these symptoms were interpreted through the lens of an emerging medical theory promulgated by Wilhelm Fliess, a Berlin physician whose reputation as a negative savant had been cemented by none other than Sigmund Freud himself. Point to be noted that I was not, उसमें देखो दो लाइन है, एक लाइन जो एकदम सीधी गई है, ठीक है, और एक लाइन में देखो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो रहा है। एम आई बॉदर्ड अबाउट रीडिंग दिस पार्ट, कि उसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसकी मेडिकल हिस्ट्री क्या रही है? Am I concerned for that part? Come on, answer me fast. बोलिए सर। I'm not specifically focused on this thing. Why? Because I know what the crux is gonna say now. The crux will be कि यार ये सारी चीजें तो देख ठीक है भाई, मुझे ये बता थ्योरी क्या है? What is the prognosis? Prognosis मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट में जो प्रोग्रेस की जाती है ना, प्रोग मतलब प्रोग्रेस, डायग्नोसिस, वहां से निकल के आया ये, यहाँ का प्रोग्रेस का PROG, यहाँ का नोसिस, दोनों को मिला के प्रोग्नोसिस। सिद्धांत, आई वॉज नॉट नोइंग द मीनिंग ऑफ प्रोग्नोसिस, बट व्हाट आई वॉज नोइंग कि एक प्रोग्रेस होती है, एक डायग्नोसिस होता है। अगर थ्योरी के ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं है, तो थ्योरी के आगे एक ही चीज होती है कि भाई उस थ्योरी के बेसिस पे हम क्या प्रैक्टिकल चीजों को कन्फर कर रहे हैं। इज दिस क्लियर सिद्धांत? यस सर, यस सर। ओके, बेसिकली दैट इज ऑल व्हाट आई डिड। हमने सिर्फ और सिर्फ पैसेज के हिसाब से देखा, पैसेज के हिसाब से हमने सारी चीजों को अपना मैन्यूवर किया, और उसके बेसिस पे हमको हमारी अंडरस्टैंडिंग अपने आप मिल गई, ठीक है। नाउ लेट्स सी, हमने इस पार्ट को तो चलो हटा दिया, ठीक है, ये पार्ट हमारा हट गया, बहुत बड़ा हो गया, सॉरी, हमने ऊपर वाले पार्ट को सिंपली हटा दिया। आई एम कंसर्न्ड विद दिस नीचे वाला पार्ट। Some symptoms were interpreted through the lens of an emerging medical theory, which was given by Wilhelm Fliess. मतलब यहाँ पे अब ये बंदा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि इसके थ्योरी के ऊपर इस बंदी का या इस बंदे का हमारा ट्रीटमेंट डिपेंडेंट है। इसका मतलब होता है डिपेंडेंट। आइडियली इसको चेंज कहा जाता है, परपेंडिकुलर बोला जाता है, बट एज ऑफ नाउ अपन इसको ये बोलेंगे ये बेस है और इसके ऊपर ये डिपेंडेंट क्लॉज है हमारा। इज दिस क्लियर गाइस? लेट्स मूव यस अहेड। सर। चलो, उसने कुछ थ्योरी दी, ठीक है, और वो कहाँ का था, क्या करता था, हमें उससे मतलब नहीं है, हम इसको भी हटा दिए, लो हटा दिए। His intervention was by modern standards grotesquely misdirected. He excised a portion of nasal bone,
specifically the inferior turbinate, from Emma's nose in the belief that her menstrual distress emanated from a pathological nasogenital reflex, an anatomical supposition tenuously tethering the nasal cavity to the genial apparatus. I'm not concerned with this. I'm not concerned with this because I know what the theory is trying to say now. लोग बोलते हैं फर्स्ट पैराग्राफ को पूरा पढ़ो, इट इज इम्पोर्टेंट. नो, आई एम नॉट अ फैन ऑफ दैट. हमने इस चीज को भी एलिमिनेट कर दिया. ठीक है, I'm gonna हाईलाइट द पार्ट जो आप लोगों को पढ़ना था ग्रीन से. ठीक है, और उस टाइम देखना कि कायदे से फर्स्ट पैराग्राफ में करना क्या था आप लोगों को. बस इतना पढ़ना था जो ग्रीन में है. बाकी चीजें वर नॉट इवन वर्दी ऑफ रीडिंग. नाउ टेल मी दिस वन थिंग. Did I read the entire passage? Did I read the entire paragraph? I'm only talking about this much part now. अभी हम सिर्फ इतने की बात कर रहे हैं. क्या हमने इसको पूरा पढ़ा? No, sir. नहीं पढ़े. पहली लर्निंग. It is not necessary to read it all. Second केसी मेरा एक doubt या है. या आपने जैसे बोला कि जैसे फर्स्ट के हमने 2 लाइन पढ़े और नीचे में फिर हमने रीडिंग मारी. राइट. बट मेरा एक कंसर्न था कि यहाँ पे जो उसकी डिजीज के बारे में उसने स्टमक पेन एंड ऑल बताया हुआ था, हाँ. वो मतलब वो इम्पोर्टेंट क्यों नहीं होगा? बिकॉज उसके बेसिस पे ही ना विलियम जो है वो अपना लाइक जो भी उसका कहते हैं ना कि जो भी सॉल्यूशन है वो लेके आया. तो मेरा कहना है कि आपने उस पॉइंट को क्यों नेग्लेक्ट कर दिया कि मतलब उसके डिजीज जो है जो स्पेसिफाइड उसमें दिया हुआ है कि स्टमक पेन एंड ऑल दैट थिंग है, उसको आपने बोला कि नहीं वी विल नॉट रीड दैट पार्ट, मतलब वी विल इग्नोर दैट पार्ट. व्हाई? ओके ओके. सी द वेरी फर्स्ट थिंग, आप या तो ऊपर की चीज पढ़ो जो हमने काटी है, या आप नीचे की चीज पढ़ो जहाँ पे हमने उसके ट्रीटमेंट के बारे में मेंशन किया है. विल इट चेंज एनीथिंग? ऊपर अगर उसने प्रॉब्लम दी है, ऊपर उसने मेडिकल हिस्ट्री बताई है, नीचे उसने ट्रीटमेंट बताया है. आई एम ओनली गोइंग फॉर दिस, क्या बोल सकते हैं उसको, एंटिसिपेशन टेक्निक. कि यार ऊपर उसने बोला है, ठीक है, कि कुछ स्टमक पेन है, melancholic spells हैं which are synchronized with her menstrual cycle, ailments neither rare nor extraordinary. यहाँ तो प्रॉब्लम मिल गई हमको. Now स्मृति, the point of Yes. contention of every author, the point of contention of every reader, tell me this one part, is it the problem or the solution? What is it? Which one? The point of contention for every person, is it the problem or is it the solution? Maybe it's a solution. Okay, you sound doubtful. Let me rephrase myself. If you have got a solution, can you decipher what the problem might have been? लाइक अगर सॉल्यूशन थोड़े स्पेसिफिक है तो हम कर सकते हैं, प्रॉब्लम को एक बार के लिए हम अज्यूम कर सकते हैं. Okay, I am asking again. If you are given with a solution, can you decipher what might be the problem? Can you decipher that? आई एम नॉट श्योर. ना कॉन्फिडेंटली बताओ. गलत है तो गलत है, सही है तो सही है. कॉन्फिडेंस मेरा से बताओ. बीच में आ रहा है मे बी और मे नॉट बी ऐसे करके. Okay, then give me a calculated guess on this. क्या हो सकता है? लाइक बताओ. इफ वी नो अबाउट द सॉल्यूशन, राइट, हाँ हाँ जी. तो हम उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं. राइट राइट. सो मतलब वो तो मतलब मेरा जो आंसर है वो इस चीज पर डिपेंड करता है कि आपका सॉल्यूशन कितना स्पेसिफिक है या नहीं है. ओके मेरा ठीक है ठीक है ठीक है. चलो अब एक बात बताओ, आपको एक प्रॉब्लम गिवन है, हाँ ठीक है, उसके सॉल्यूशन के बेसिस पे या इस प्रॉब्लम के बेसिस पे आप बताओ कौन सी चीज सही होगी, कौन सा सॉल्यूशन सही होगा. बहुत जनरल स्टेटमेंट है ये टू स्मृति एंड टू एवरीवन एल्स प्रेजेंट. आपके पास एक प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम के बेसिस पे अब आपको ये बताना है कि कौन सा सॉल्यूशन सही होगा.
What is the main thing that will decide this? कि वो प्रॉब्लम कैसा है. Incorrect. Great. आगे बताओ. Incorrect था वो, कुछ और. I'm looking for some another word. You use that word in solution part, but you're not using that part in problem one. Try to get uncomfortable with these theories. Try to get uncomfortable with your comfort zone. तब जाके growth मिलता है. आगे बताओ. वो प्रॉब्लम कितना स्पेसिफिक है. करेक्ट. प्रॉब्लम स्पेसिफिसिटी विल डिसाइड कि यार मेरा सॉल्यूशन में कौन सा चुनूं. शुड आई चूज S1, शुड आई चूज S2, S3, S4, S5, S6. The specificity of the problem will command me to choose a particular solution based on this specificity. अब थोड़ा सा इसको यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है. अपन को सॉल्यूशन गिवन है. नेसल बोन्स मतलब रेस्पिरेशन वाला कुछ हो सकता है, क्योंकि उसने एक्साइज कर लिया नेसल बोन को, ठीक है. मतलब उसने उसकी भी मतलब सर्जरी मार दी. स्पेसिफिकली द इंफीरियर टर्बिनेट, नाक का बांसा जैसे बोलते हैं, ठीक है. In the belief that her menstrual distress emanated from a pathological nasogenital reflex. What an absurd kind of person he was. I would say that if there is some sort of menstrual distress, something like that happening to someone, a pathological nasogenital reflex, no. हमको तो भाई बेवकूफ़ी ही लग रही है, ठीक है. बट ठीक है, ऑथर ने कहा है तो हम इसको मानेंगे कि ये भगवान है. तो अगर यहाँ पे देखो नेसल बोन बोल दिया उसने, इन्फीरियर टर्बिनेट बोल दिया, ठीक है, बिलीव दैट हर मेंस्ट्रुअल डिस्ट्रेस बोल दिया, तो कहीं ना कहीं यार ये चीज उसके इंटरप्रिटेशन को बताएगी, बिलीफ को. बिलीफ आपको बताएगा कि उसका माइंडसेट इन्वॉल्व है इसमें, या उसका बिलीफ ऐसा कुछ है, या उसका साइकोलॉजी ऐसी कुछ रही, ठीक है. हमें ये चीज पता चली. नेसल बोन से पता चला कि भाई हो सकता है उसको नाक संबंधी कोई समस्या रही होगी, ठीक है. हमें ये चीज भी पता चल गई. सो ओवरऑल व्हाट आई डिड, हमने सॉल्यूशन देखा, उसके बेसिस पे हमने अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिसाइड कर लिया. दिस कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस. ऐसा नहीं है कि ऑन द स्पॉट हो जाएगा, समय लगेगा लेकिन आ जाएगा. बट एक चीज है, जैसे उसने नेसल बोन के बारे में बोला एंड देन उसने मेंस्ट्रुअल डिस्ट्रेस के बारे में बोला कि मतलब उसका बिलीव था कि अगर वो नेसल बोन को ट्रीट करेगा तो उसका मे बी मेंस्ट्रुअल डिस्ट्रेस खत्म हो जाएगा, काइंड ऑफ. मतलब रफ आइडिया अगर मैं लगाऊं तो वो ये बोलना चाह रहा है, ठीक है. तो ठीक है. तो फिर आपने ये चीज बोली कि हमने उस पे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया कि उसका कुछ नेसल बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा. बट व्हाट इफ, लेकिन ऊपर में जैसे लिखा हुआ है कि उसका स्टमक पेन है, देन हम उससे कैसे वो इन्फर कर सकते हैं कि नहीं वो प्रॉब्लम उसका था जो वो नेसल बोन का ही था, वो स्टमक पेन का नहीं था, या फिर वो मतलब जो भी वाइस वर्सा होगा. आई डिडंट गेट यू. आप क्या पूछना चाह रहे हो? आई डिडंट गेट इट. अरे मेरा मतलब है कहने का, जैसे आपने बोला ना कि नेसल बोन के बारे में उसने सॉल्यूशन दिया, हाँ. कि मतलब नेसल बोन था एंड देन मेंस्ट्रुअल डिस्ट्रेस, ये आपका एक वो कम मतलब आपका एक लॉजिक बैठा आ रहा है, हाँ. ठीक है. तो हाँ. उससे हम एक प्रॉब्लम मतलब रफली हम प्रॉब्लम को एक आइडेंटिफाई कर लेंगे कि अच्छा ये प्रॉब्लम हो सकता है, हाँ. राइट. ठीक है, हमने स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं पढ़ा बट हमने एक दिमाग में बैठा लिया कि ये प्रॉब्लम हो सकता है. बट मेरा कहना है कि समटाइम्स ऐसे ऑथर सरफिरे होते हैं, तो व्हाट इफ कि हम जो सोच रहे वो सही ना हो के. ओके, गॉट इट. ठीक है. देखो आपका कहना ये है, अपन ने यहाँ कंसिडर किया नेसल बोन वाला पार्ट, राइट, और उसके यस. ट्रीटमेंट के बारे में अपन ने कुछ कुछ बताया. हाँ. और ऊपर में उसने स्टमक पेन के बारे में बताया है, उसके बारे में कुछ कुछ बताया और उसके बारे में कुछ दिया है. ट्रू. ठीक है. यू नीड टू अंडरस्टैंड, एक अम्ब्रेला है, ठीक है. उस अम्ब्रेला में एक और अम्ब्रेला होता है नीचे. हम मतलब ये अज्यूम करके चल रहे, ठीक है. एक और अम्ब्रेला है. आपको ये देखना है कि ये छोटी वाली जो छतरी है बड़ी छतरी के अंदर आ रही है कि नहीं आ रही है. नेसल बोन जो है इट इटसेल्फ इज द पार्ट ऑफ दिस. हमारा मेन प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो ये है ना, उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल को डील करना. हाँ. ये सारी चीजें तो उसके पार्ट हैं. अब हाँ. हमने क्योंकि वहां पे सारी चीजें पढ़ ली हैं, ठीक है. आई एम नॉट सेइंग कि उस पार्ट को देखो ही मत, आंख बंद कर लो. आई नेवर सेड दिस. एक ओवरव्यू वाली रीडिंग देना जरूरी है यार, हर एक स्टेटमेंट को. आई वुड से हर एक स्टेटमेंट जरूरी होता है बट इंपॉर्टेंट नहीं होता प्रॉपरली. हर एक स्टेटमेंट जरूरी है बट इट इज नॉट वर्थ रीडिंग. आपने ये चीज पढ़ ली, एपिसोडिक स्टमक पेन, मेलानकोलिक स्पेल्स, सिंक्रोनाइज्ड विद हर मेंस्ट्रुअल साइकिल. यार मेन तो हमारा यही है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में. यही हाँ. हमारा लीड कर रहा है इसके नेसल बोन को, यही लीड कर रहा है हमारे स्टमक पेन को.
और यही लीड कर रहा है ये जो इसने बोला पैथोलॉजिकल नेसोजेनाइटल रिफ्लेक्स वाला पार्ट, यही इसको भी रूल आउट मतलब रूल कर रहा है। सो ओवरऑल हमारी सारी चीजें अब किस पे डिपेंडेंट हो जाती हैं आके, कि भाई उस बंदी की मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या थी, ठीक है। आई विल बी डीलिंग इन द एंटायर पैसेज ऑन दिस पार्ट, कि भाई उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में कहीं ना कहीं ये पैसेज अब डिस्कस करने वाला है। इज इट क्लियर स्मृति? Yes. Okay, fine. Guys, anyone else has any sort of doubt in this? Thank you, Casey. Welcome. No, sir. So, Casey, I would like to add some few points over this. Yeah, Prince, please. Like what you said, that was spot on, and you are just a maestro in this. And one thing that I would like to say is that the thing that are being mentioned, like what people were asking, like how would we know that what's the main point, what the author is trying to say. So I think like these points, extra points, like these are just to throw you off. Like you are comprehending something, you are trying to understand the entire crux, like what's being said or what's the entire crux of the particular paragraph. And these extra points and all, they are just there to throw you off. And your goal should be not to get thrown off and staying on the track. And after reading that particular paragraph, you can just reflect like what's the main point. And eventually when you will go on with the article or the passage, you will get to know like what's actually the author was trying to say, like the stomach pain and all. It was unnecessary. Like in the end, it was all about the menstrual pain and how the nasal wound operation was doing the thing. So yeah, that was what I was trying to say. Like, do not get thrown off. You need to stay on track. You need to understand. See, प्रिंस का कहना ये था कि भाई आप बस इस चीज को कंसिडर करो कि ऐसी कौन सी चीज है जो मेरे लिए जरूरी है. दैट इज द Right. ओनली पार्ट यू विल बी कंसर्न्ड अबाउट इन द एंटायर VARC. ऑथर जो बोला मैं उसको कंसिडर करूंगा, लेकिन ये भी देखना है कि भाई मेरे हिसाब से क्या सही है. मेरे हिसाब से मतलब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है. अब क्वेश्चन ने पूछा है व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ इंफीरियर टर्बिनेट as mentioned in the passage. Why did the author mention this? Too easy for you. Like you can always go back and can see that particular technical term, the definition, and you can mark it. Like, but and all those things that are mentioned, like 1895, 30-year-old woman, it is totally unnecessary. Like, why would you know the age of that particular woman, the year? These are just unnecessary information. Yeah. मतलब आपसे पूछा गया है पैसेज में कि भाई साहब देखो, आपको एक कर्म करना है, आप जाते हो, ठीक है, और कांड करके आ जाते हो. नहीं करनी है ये चीज भाई. इफ देर इज दिस थिंग अबाउट नेसल कैविटी एंड द सेम थिंग इज बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन, आई विल बी ओनली कंसर्न्ड अबाउट कितना पार्ट, उसके पहले वाला जो स्टेटमेंट है वो, और उसके बाद वाला स्टेटमेंट जो है वो. बस हमको बस इसी रेंज में खेलना है, यहां से लेकर के यहां तक की रेंज. दैट इज माई प्लेइंग एरिया. बस यहीं तक खेलना रहेगा हमको पैसेज में. अगर उसने नेसल कैविटी से रिगार्डिंग कुछ पूछा है विद द अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट, ठीक है. अब हो सकता है नेसल कैविटी कहीं कहीं पूरे पैसेज में गिवन हो, बट अंडरस्टैंडिंग तो यहाँ गिवन है ना उसकी. तो ये चीज करना रहता है. इज इट क्लियर? Yes. ओके. सर एक डाउट था हाँ बताओ. सर, क्वेश्चन पहले रीड करा जाए मतलब या पैसेज ऐसे बता दो. ऑलवेज द पैसेज फर्स्ट. व्हाट हैपेंस, आप अगर क्वेश्चन के बाद पैसेज में जाते हो, ऐसा माइंडसेट आपको बायस कर देता है. और पैसेज से अगर आप क्वेश्चन में जाओगे तो ऐसा माइंडसेट आपको हमेशा फ्लेक्सिबल रखेगा. केसी, बट समटाइम्स ऐसा होता है कि मान लो जैसे सीएल का मैं बता रही हूँ कि जैसे मान लो आपके पैसेजेस दिए हुए हैं, तो फॉर एग्जांपल एक पैसेज है जिसमें ऑलमोस्ट आपको चारों क्वेश्चन क्रिटिकल रीजनिंग बेस्ड दिए हुए हैं, एंड फॉर एग्जांपल मेरा उसमें से मतलब उसमें 4 क्वेश्चन है वो मेरे लायक नहीं है. तो ऐसा होता है ना, मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि वैसा होता है कि अच्छा पहले आपने वो क्वेश्चन पढ़ लिया, यू नो कि अच्छा ये क्वेश्चन आपसे नहीं हो सकते, तो यू स्किप दैट पैसेज एंड गो टू नेक्स्ट पैसेज, ऐसा वाला. तो क्योंकि ऐसा बहुत बार मैंने देखा है कि आपको जो 4 क्वेश्चंस होते हैं वो आपको मतलब कभी-कभी ऐसे थोड़े डिफिकल्ट से आते हैं, स्ट्रेंथिंग वीकनिंग वाले या कंक्लूजन या इंटायरली आपको क्रिटिकल रीजनिंग बेस्ड ही आते हैं जिसमें आपको स्पेसिफिकली उससे रिलेटेड पूछा है. तो फिर ऐसा नहीं होगा कि मतलब आपने मान लो आपने पैसेज पढ़ लिया और फिर आप क्वेश्चन पे जा रहे हो, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि अच्छा आपसे वो चारों क्वेश्चन आप टैकल ना कर पाओ तो आपका तो वो टाइम वेस्ट ही हुआ ना. जस्ट आस्किंग. हाँ ठीक है. सी, as per the point of view of an aspirant, you are in the month of June.
ठीक है. How come is it possible for a human being with who has a worthy cognition, ठीक है, to exist in this tough world? क्या उसके लिए एक टुच्चा सा पैसेज डील करना बहुत डिफिकल्ट होगा क्या? 6 महीने 5 महीने अगर वो लगातार प्रैक्टिस करता है तो? A very straightforward question and a very logical one. Is it? Definitely not. Definitely not, right? So Yeah. if you will presume, if you will create a mindset कि अगर कैट के दिन ऐसा आता है, I'm not targeting you, I'm just telling, अगर कैट के दिन ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को मैं ये कंसिडर करूंगा कि यार ये तो डिफिकल्ट है, मैं नहीं कर पाऊंगा. तो जब आपने पहले ही हथियार डाल दिए हैं भाई तो आपसे कैसे बनेगा? You don't need to do that. Come what may, bring it on. I'll deal with it. I know there is a practice of like 150 days, 170 days. I can surely deal with it. I have that much of cognition. Is it clear, guys? Yes. Yes. Yeah, Siddhant, you had some sort of doubt. नो सर, हो गया, वाइड आउट है. Okay. Also, like if you were skipping just the entire passage just by looking at the questions and बाद में आपको पता चले कि वो passage बहुत easy था, like that would be the biggest regret of your life. अरे सच में So this do happens. not. This really happens. This happened with me in that 2024, I guess. Yeah. What I did, I read the questions. ठीक है, and questions were very much logical. And when I read the passage ना, आखिरी के हमारे पास कुछ 5-7 मिनट बचे थे. हम सोचे एक बार पढ़ते हैं. When I read that passage, I kind of learned the entire passage. हमको मतलब पूरा पैसेज याद हो गया कि यार क्या कहना चाह रहे हैं. And when I went on with the questions, उसमें से हमारे 3 क्वेश्चन आराम से निकल गए थे, which again yielded me an effective of 96 percentile. अगर हम उन 3 Which क्वेश्चंस को means ना करते तो हम शायद कहीं 85-90 में एग्जिस्ट कर रहे होते. sometimes it happens कि आपका क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग रहा है बट पैसेज आपका उतना इजी हो सकता है कि आप क्वेश्चन को डील कर लो. बिल्कुल, दैट इज व्हाट आई डू इन माय मॉक्स. आप लोग मॉक्स देखोगे, डायनामिक मॉक 1 2 3 4 5, सब में यही चीज तो हुई है. किसी के पैसेज को हमने इतना इजी कर दिया है, इतना इजी कर दिया है कि भाई पढ़ के बच्चे को लगा अरे यार हाँ ये पैसेज तो मैं करूंगा ही करूंगा, कुछ भी हो जाए मैं तो इसको करके रहूंगा. एंड व्हेन दे went to the towards the questions, they were like, oh my god, I have just wasted 5 minutes. एक पॉइंट को चलो ठीक है क्या किए हमने VRC डायनामिक मॉक 3 में की थी ये चीज, हमने पैसेज को इजी कर दिया. ठीक है, नो व्हाट द फक हैपेंस. ओके, हमने क्या किया, पैसेज को हमने इजी कर दिया, क्वेश्चंस को भी इजी कर दिया, लेकिन जो ऑप्शंस थे दे वर विशियस इनफ. लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था. तो जब आपको ऑप्शन ही समझ नहीं आ रहा है तो आप आंसर मार्क कैसे करोगे? दिस कुड आल्सो बी द केस. तो फिर ऐसे सिनेरियो में क्या करना चाहिए? irrespective of anything, आपको प्रैक्टिस. आपको बस एक चीज करनी है. यू हैव टू फोकस एंटायरली ऑन पैसेज. आप पैसेज की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो. ठीक है, हम बोले ना अगर आपको 60% क्लोज, अरे यार अगर आपको क्लोज टू 60% भी समझ में आ जा रहा है, यू कैन स्ट्रेट अवे गो टुवर्ड्स द क्वेश्चंस. यू नीड नॉट टू स्टे बैक एंड रीड अगेन एंड अगेन कि हम पहले पढ़े फिर वही पढ़ रहे हैं, फिर वही पढ़ रहे हैं, फिर वही पढ़ रहे हैं, फिर वही पढ़. नो, वाई टू वेस्ट योर भाई. चलो ठीक है, यू सेड ना अगर ऐसा केस हुआ हमसे फिर भी नहीं बनता है, यू ऑलवेज हैव द लिबर्टी ऑफ लीविंग दैट पैसेज स्ट्रेट अवे. जो आपको +3 मार्क्स इस क्वेश्चन नंबर 3 को करने में मिलेंगे, वही +3 आपको क्वेश्चन नंबर 7 को करने में मिलेंगे. ऐसा नहीं कि आप यहाँ करोगे तो आपको +6 मिल जाएगा, यहाँ करोगे +2 मिलेगा. नो भाई, +3 यहाँ भी मिलेगा, +3 यहाँ भी मिलेगा. सो इट इज बेटर ना कि टाइम फ्रेम के हिसाब से सबसे पहले मैं अपनी स्ट्रैटेजी को एडजस्ट कर लूँ. कल परसों नहीं, छुट्टी लेने के पहले हमने जो एनालिसिस बताया था मॉक का, उसमें हमने ये चीज क्लियरली बताई है सॉल्व करके कि कैसे करना है पैसेज को सॉल्व, कैसे करना है एक आरसी को अटेम्प्ट. आई हैव स्ट्रेट अवे क्लियरली मेंशन्ड दिस पार्ट. ट्राई टू कम इन दैट जोन. मतलब हम जो अटेम्प्ट किए थे ना, मतलब क्विज रहा वो, आई गेस डायनेमिक मॉक 5 था वो. ठीक है, वो ऐसा था कि उसमें एक या दो पैसेज थे. ठीक है, हमारे पास मिनट्स हमने दिए थे 40. ठीक है, दीप का स्कोर आया था उसमें 24 आउट ऑफ 33 या 36 कुछ था. माई स्कोर वॉज 30 आउट ऑफ 33.
हमने क्या किया था, हम ऐसे नहीं गए कि हमने पहले पढ़ा पैसेज 1, पैसेज 2, पैसेज 3, पैसेज 4। नो, आई डिड नॉट डू दिस थिंग। इंस्टेड व्हाट आई डिड, हमने पढ़ा पैसेज 1, देखे क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, अरे 4 नहीं बनेगा, लेट्स होल्ड इट, इतना किए आगे बढ़े। पैसेज 2 गए, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं बना, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं बना, क्वेश्चन नंबर 3 डाइसी, क्वेश्चन नंबर 4 बन गया, चलो पैसेज नंबर 3 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बन गया, 2 बन गया, 3 बन गया, 4 बन गया। अब हमारे पास, हमने देखो टाइम कहाँ कहाँ बचाया, 1 2 3 4 जगह हमने अपना टाइम ऑलरेडी बचा लिया है, ठीक है। अब क्योंकि हमने अपना टाइम 4 जगह बचा लिया, तो अब उस टाइम को हम क्या करेंगे, इनमें यूज करेंगे, 1 2 3, ठीक है, और ये डाइसी था हमारा 4। अब हमने वो क्या किया, 2-2 मिनट करके, ठीक है, हर जगह उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ऐसे में व्हाट आई डिड, हम ऑलरेडी एक इफेक्टिव स्कोर ऑफ, आई मेंटेन्ड एन इफेक्टिव स्कोर ऑफ 24 फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। नाउ आई केम इन द ग्राफ ऑफ 85 to 90 परसेंटाइल फर्स्ट ऑफ ऑल। अब जब हमने कट ऑफ निकाल लिया, अब हमने देखा कि भाई अभी देख यार विष्णु, ऐसा है कि तेरे पास अभी भी +10 मिनट्स बचे हैं, ठीक है। तो अब क्या करे भाई, तू इन 10 मिनट को यूटिलाइज कर उन क्वेश्चंस के लिए जो तू छोड़ दिया था। हो सकता है कि इसमें 4 में से 4 बन जाए, 2 में से 4 बने, 1 में से 4 बने, एनी डे। आप 10 मिनट एक क्वेश्चन में भी लगाओगे ना, 100% एक्यूरेट आना तय है यहाँ पे। एनी डे आप 5-5 मिनट 2 क्वेश्चन में लगाओगे, 100% एक्यूरेट आना तय है। एनी डे आप 10 मिनट, सॉरी 2-2 मिनट करके आप 4 क्वेश्चन लगाओगे, आपका 70% एक्यूरेसी आना तय है। तो अब क्या हुआ, पहले जो हमारा स्कोर 24 था, अब वो बढ़ के हमारा या तो 27 हो गया, या फिर 30 होगा, या फिर पूरा 33 हो गया। अब समझ में आया व्हाट इज द स्ट्रैटेजी दैट यू हैव टू यूज, इज इट क्लियर। Yes, sir. यही चीज लोग नहीं कर पाते, दे गेट स्टक, मुझे यही क्वेश्चन करना है। दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई जो तेरे को P1Q2 में मिलेगा +3, वही तेरे को P3Q4 में मिलेगा, और वही तेरे को P1 के Q4 में मिलेगा, वही +3 तेरे को P2 के Q1 में मिलेगा। बट पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट, विच इज वाई दे अगेन एंड अगेन एंड अगेन कीप स्ट्रगलिंग विद दिस VRC वाला पार्ट। आई होप आई एम क्लियर इन दिस, सो यू डोंट नीड टू डू दैट पार्ट। क्लियर हुआ, यस और नो? Yes, sir. ओके फाइन, जस्ट गिव मी अ मिनट, क्लियर करके हम आगे का बताते हैं। चलो रीडिंग हमने देख लिया, ठीक है, अज्यूम क्या करना है वो देख लिया, माइंडसेट को कैसे रखना है हमने वो देख लिया, अटेम्प्ट को कैसे रखना है हमने वो देख लिया, क्वेश्चन को छोड़ना है कैसे है, क्वेश्चन को पकड़ना कैसे है, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन पहले कि पैसेज पहले, पैसेज पहले कि क्वेश्चन पहले, सारी चीजें हमने डील कर ली। व्हाट आई डिडंट डील वाज व्हाट टू रीड एंड हाउ टू रीड, ठीक है। एक अगर हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग निकालें, हम बस इतना पार्ट लिखे वो करेंगे हाईलाइट जो पढ़ना है, ठीक है। दैट इज ऑल आई रेड, बस ऊपर वाला पार्ट आई सिंपली एलिमिनेटेड, आई एम नॉट कंसर्न्ड, आई एम नॉट कंसर्न, आई एम नॉट सेइंग कि हम उसको पढ़ेंगे नहीं, नो, आई सेड आई एम नॉट कंसर्न्ड विद दैट एज ऑफ नाउ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो ऊपर हमको पता चल गया कुछ मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड कुछ हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट निकल के आ रहा है। चलो देखते हैं, दिस रिफ्लेक्स, कौन सा रिफ्लेक्स जो यहाँ पे अभी डिस्कस हुआ, regarded now as a bizarre relic of Feindesliak pseudoscience, then held theoretical gravitas. Physicians of the era earnestly conjectured genital spots, nasal mucosa, मतलब जो म्यूकस निकलता है सर्दी के समय आप लोगों की नाक से, ह्यूमन बींग्स की नाक से, उसके बारे में बता रहा है, govern not only reproductive function but a panoply of psychosomatic and neurological disturbances. Now this part cites the importance of reading. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कई सारे फ्रैगमेंट्स ऐसे हैं जिसमें आपके थियोरेटिकल फ्रेमवर्क्स गिवन है, जो आपके आगे की जो पूरी हमारी थ्योरी है उसको डिसाइड करेगी, ठीक है। देखते हैं, initial therapeutic modalities range from the topical application cocaine to cauterization by acid or electric current. More recalcitrant cases warranted surgical intervention, thus Emma's nasal mutilation.
The terminate bones which naturally humidify, filter and warm inspired air were sacrificial in the name of speculative medicine. Now what the author has done, what the examiner has done in this, उसने एक जबरदस्ती superficial आपके सामने केस रखा है, ठीक है, जहां पे आप अपने टाइम को माइनस करते जाओ, जबरदस्ती आप अपने टाइम को खा रहे हो. Instead, what you should have done had been had been I the examiner of this particular paper. हम क्या करते? Physician of the era honestly conjectured genital spots, okay. Mucosa only reproductive function but a panoply, okay. कुछ उसके पास और भी चीज़ें होती है, सिर्फ यही चीज़ नहीं होती, ठीक है, सिर्फ वो रिप्रोडक्टिव वाला पार्ट नहीं रखता है, उसके अलावा भी उसके पास n नंबर ऑफ थिंग्स हैं, ओके, अंडरस्टूड. इनिशियल कुछ फाइंडिंग्स हैं, ठीक है, जो X से निकल के Y तक जाती हैं, आई एम नॉट कंसर्न अबाउट क्या है वो, ठीक है. फिर कुछ टर्बिनेट बोन्स हैं जो नेचुरली ह्यूमिडिफाई करते हैं, फिल्टर वार्म, ओके, ठीक है, समझ गए. मतलब ऑथर हमारा जो है वो इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई देख, तूने जो कुछ भी पहले क्या बोलते हैं पहले पढ़ा है ना, आइडली हुआ क्या है इसमें, वहाँ पे हमको बता दिया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात है, ठीक है. फिर उसको बाद में बताया जाता है कि यार बिजार रेलिक है, मतलब उतनी कोई उसको इम्पोर्टेंस देता नहीं है डिस्पाइट कि उसके इतने सारे प्लस पॉइंट्स हैं, ठीक है. डिस्पाइट द प्लस पॉइंट्स इट वाज नॉट गिवन इम्पोर्टेंस. खत्म, पैराग्राफ खत्म, नहीं पढ़ना आगे. अगर हम इसका एक एनोटेशन बनाएं तो इसका एनोटेशन हो सकता है सम सिम्टम्स, ये P1 का है, पैराग्राफ 1 का है, ठीक है. कुछ सिम्टम्स रहे हैं, ठीक है. फिर उन सिम्टम्स का इट वाज डिजाइंड टू गो दिस वे बट व्हाट हैपेंड, वो अपना वे डेविएट करता है और वो कहीं और ही चला जाता है, ठीक है. पैसेज नंबर 2 में अगर हम देखें तो पैसेज नंबर 2 में इसको बोला जाता है दैट इट इज बिजार, ठीक है, नॉट गिवन इम्पोर्टेंस, बस हो गया. पैसेज नंबर 3, paragraph number 3. Fleas, whom Martin Gardner later derided as emblematic of German crackpottery, had an outsized intellectual impact on Freud, who hailed him as the Kepler of biology. Freud, in a lecture delivered at the University of Vienna, espoused Flea's doctrines with evangelical fervor, and the two entertained co-authoring a treatise amalgamating nasal neurosis with anxiety pathology. Freud's encomium went so far as to suggest naming his offspring after the man, though as fortune dictated his youngest children were daughters. Their correspondence, ठीक है. ओवरऑल हमने क्या किया, हम अभी एक एस्पिरेंट हैं, हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ रहे हैं, हम क्या किया, हमने यहाँ तक पढ़े, आई वॉज वेरी मच हैप्पी. लेकिन जैसे ही यहाँ पे आया हमारा दिमाग खराब हो गया. अरे यार, उसने कुछ वहाँ पे वो बता रहे थे कि यार ये चीज़ें किस तरीके से एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, उसको क्या मतलब उसको क्या उपाधि दी गई, ठीक है, फ्लीस नाम के बंदे को. तो अचानक से यहाँ ये ऑफस्प्रिंग की बात क्यों कर रहा है. यंगेस्ट चिल्ड्रन और डॉटर्स, हिज यंगेस्ट चिल्ड्रन, अपने बच्चों की बात क्यों करने लगा. अब यहाँ पे होता है एस्पिरेंट का दिमाग खराब. तो आई वुड से एस्पिरेंट का दिमाग खराब नहीं हो रहा है, एस्पिरेंट खुद ही अपना दिमाग खराब कर रहा है. एस्पिरेंट को पढ़ना ही नहीं रहा है ये वाला पार्ट, ठीक है. He can as well what he should be doing. Had I been in this examiner, Fleece, Martin Gardner later derided emblematic German crackpottery. Okay, Kepler of biology, ठीक है. Freud lectures जहाँ पे होते हैं, ठीक है, वो कुछ बताते हैं and entertain co-authoring treatise amalgamating nasal neuros. मतलब अब क्या होता है, फ्लीस और फ्रॉइड, ठीक है, इनका कुछ शायद अमालगमेशन होता है, ठीक है. फ्रॉइड्स एनकोमियम वेंट सो फार सजेस्ट नेमिंग हिज ऑफस्प्रिंग, इतना ज्यादा हो गया कि फ्रॉइड ने अपने बच्चों का नाम वही रख दिया, जो इसका कुछ प्रिंसिपल्स निकल के आए हैं, इसकी कुछ फाइंडिंग्स रही हैं, उसने अपने बच्चों का नाम वही रख दिया.
ये था पैराग्राफ नंबर 3 में। नाउ टेल मी दिस, इसमें ऐसा कोई भी पार्ट था क्या जो जरूरी था, जो हमारे क्वेश्चंस को आंसर कर सके? बताओ, was there anything in this particular question? come on guys fast. नहीं था सर। कुछ था ही नहीं ना इसमें। तो these are the traps that a question setter that an examiner creates. आइडियली इसको नहीं भी पढ़ते तो भी चल जाता, बट सिंस यू गाइज हैव रेड दिस, आपका टाइम अपने आप बर्बाद हो गया ना। आइडियली आपको ही पढ़ना ही नहीं था, यू कुड हैव सिंपली एलिमिनेटेड। इसको ना पढ़ के आप आराम से अपना +1 मिनट कर सकते थे, बट वॉट यू डिड इंस्टेड, एक एस्पिरेंट ने क्या किया, अपना -1 कर लिया मिनट्स। ये गलती होती है एग्जाम के दिन, ये चीज रहती है जो कोई नहीं बताता, ये चीज रहती है जो लोग बताने से बचते हैं, इन दी होप कि यार हमारे पास एक रिकरिंग चीज आएगी। ठीक है, ठीक है, हटाओ, आई एम नॉट गोना कमेंट ऑन दैट। तो बच्चे दोबारा एग्जाम में। सॉरी, आई वाजंट एबल टू हियर यू। ओके, ट्रेजिकली, ओ अब बुरा हुआ। अब क्या मेसी होता है? हाँ जी। मेरे को एक मतलब एक डाउट था, मतलब जैसे आपने बोला कि इस पैराग्राफ को, मतलब इस पैरा को हम स्किप करके अपना 1 मिनट बचा सकते हैं, बट एक एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछ रही हूँ, बट ये चीज़ हमें पता कैसे चलेगी कि हाँ इसको तो स्किप ही कर देना है? लाइक समटाइम्स होता है ना कि अच्छा पहले हमने पहला सेंटेंस पढ़ा, हमको लगा अच्छा ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, चलो दूसरा पढ़ के देखते, मे बी उसमें कुछ इम्पोर्टेंट मिल जाए या थर्ड वाले में कुछ मिल जाए। तो उस चीज के चक्कर में हम क्या करते हैं कि हम ये पूरा पढ़ लेते हैं। हम्म तो फिर वो माइंडसेट, मतलब वो कैसे डेवलप होगा, वो कैसे आएगी चीज कि हाँ ये स्किप करना है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है? वो प्रैक्टिस से आती है यार। हम, मतलब बेसिक। हाँ, हाँ, नहीं नहीं आप बोलो। मतलब हम जब करते थे प्रैक्टिस ना, तो हम भी सब पढ़ते थे, लेकिन एक पॉइंट के बाद हमको लगा यार क्यों पढ़ रहे हैं हम ये, इसमें तो एक क्वेश्चन भी नहीं आया। एन नंबर ऑफ पैसेजेस सॉल्व करने के बाद हमको ये चीज क्लियर हुई, यार पैसेज पैसेज के हिसाब से क्वेश्चंस तो आए ही नहीं, तो हम क्यों ही इसमें अपना टाइम वेस्ट करें। ओके। और कुछ? नहीं तो बेसिकली ये प्रैक्टिस, जितना पैसेज पढ़ेंगे या जितना आर्टिकल्स पढ़ेंगे उसके उस हिसाब से धीरे धीरे ये इंस्टिंक्ट अपने आप बैठते जाएगा, राइट? हाँ हाँ हाँ। ओके। चलो आगे, और किसी का कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट, एक मैसेज डाल दें। चलो, tragically, Emma's surgery resulted not in belief but in cascade of septic complications. My goodness. Culminating in the discovery of gaze and negligently left inside her nasal cavity by a fleas. My god. When a horrified Freud summoned another surgeon, the removal of the gaze triggered what he describes as a flood of blood, compelling him to flee the room in distress, steadied only by a glass of cognac. Emma, her face disfigured and hemorrhaging, observed mordantly, "So this is the strong sex." Despite the debacle, Fleiss's reputation endured, and even Emma remained curiously forgiving, eventually becoming a psychoanalyst herself. Overall, I would say this was something you should have read. This is the aspirant speaking. Why? जान के इस चीज को यहां डाला गया, जान के। यहाँ पे नो फीलिंग्स एट ऑल, कुछ नहीं, टोटली ही इज लाइक कि ही इज heartless person. But all of a sudden, what the author does, he tries to invoke a fear, a sympathy, an empathetic nature. That is what the author is trying to do in this. Why the author is doing this? What's the main what's the main driving force that author is doing this particular thing?
इन दिस पैराग्राफ आपने देखा कि ऊपर में तो आपने ज्यादा पढ़ा नहीं, आपने उसको धीमे धीमे करके छोड़ दिया, ठीक है। अब आप क्या करोगे ना, आपको लगेगा, ठीक है, कि यार यहाँ पे इसने ऐसी ऐसी बात कही है, ठीक है, और आगे जाके क्या होगा, वो उसी चीज को कहीं ना कहीं बढ़ाएगा। आइडियली वही तो होता है पैसेज में, उसने कुछ कुछ बता दिया और हम उसके बेसिस पे हम कुछ कुछ समझ लिए, और वो कुछ कुछ करते करते फिर हमारा पेपर में भी कुछ कुछ हो जाता है, ठीक है। फिर हमको लगता है यार हमने तो पढ़ा था, हमने तो अच्छे से अटेम्प्ट भी किया। द पॉइंट इज नॉट ओनली पढ़ना, द पॉइंट इज नॉट ओनली समझना, द पॉइंट इज आर यू एबल टू कॉम्प्रिहेंड कि आप आगे उस चीज को कैसे परस्यू कर रहे हो, ठीक है। सेकेंड थिंग, हमें ये कंसिडर करना है कि यार हमने ये सारी चीजें पढ़ तो ली, ठीक है, लेकिन पढ़ने के अलावा हमने उस ऑथर का जो माइंडसेट है उसको पढ़ा कि नहीं पढ़ा। क्योंकि आइडली हमको डील करना है ऑथर से, एंड ऑफ द डे हमें क्वेश्चन आंसर करने हैं ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आई डोंट नीड टू बिकम एन एस्पिरेंट, दैट इज व्हाट द बिगेस्ट मिस्टेक पीपल डू। They think that I am an aspirant, what you don't have to do in the exam, because आप अगर वो कंसिडर करते हो तो आपके मार्क्स भी एक एस्पिरेंट के जैसे आएंगे, ठीक है। इंस्टेड व्हाट यू शुड डू, आपको ये कंसिडर करना, आई एम द एग्जामिनर, आई माई सेल्फ एम क्रिएटिंग दिस क्वेश्चन, आई माई सेल्फ एम अंडरस्टैंडिंग दिस पैसेज। अगर आप ये चीज करते हो, आई वुड से 50% आपके मार्क्स अपने आप बढ़ जाएंगे यार। क्यों पता है, क्योंकि आपने पैसेज को समझा है, ठीक है, आपने पैसेज की इंट्रिकेसीज को समझा है, आपने पैसेज के उन डिफिकल्टीज को समझा है जैसा ऑथर चाहता था कि आप समझो। तो अगर आप वो चीज करते हो तब जाके आप एक अच्छे एस्पिरेंट बन पाते हो, या आप एक अच्छे वीआरसी के स्कोरर बन पाते हो, ठीक है। आइडली व्हाट यू, आपको करना क्या था, सपोज यू आर एन एग्जामिनर, ठीक है, आप एक एग्जामिनर हो, एक क्वेश्चन सेटर हो, जान के यहाँ पे दिया गया है, फाइंडिंग्स क्या है ये बता देते हैं। एमआर सर्जरी रिजल्टेड नॉट इन बट इन कॉम्प्लिकेशंस। अब सेप्टिक कॉम्प्लिकेशंस क्या थे, हमें सेप्टिक का मतलब तो नहीं पता, ठीक है। अगर मतलब नहीं पता है तभी जाना इस पार्ट को पढ़ने, या अगर कंटेक्स्ट नहीं समझ पा रहे हो तब पढ़ना, या आई वुड से चल यार पढ़ लो, इतना पढ़ लो चलो। Nasal discharge, hemorrhaging, and foul-smelling pus culminating the discovery of gauge negligently left inside a nasal cavity by fleas। ऐसा तो नहीं है ना, ऑथर ने अगर बोल दिया कि यार देखो अब उसके नाक में ना एक गेज रह गया, ठीक है, तो अब उसको वहीं छोड़ देंगे मरने के लिए। ऐसा करेगा क्या ऑथर, बताओ, करेगा ऐसा ऑथर, बताओ जल्दी बताओ। अरे कम ऑन यार, फास्ट। सर नहीं करेगा। व्हाट द ऑथर नो विल डू, सर। वो बताएगा यार देखो इसने एक प्रॉब्लम फेस की है, ठीक है, और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है, तो वो सॉल्यूशन अपन को आखिरी में दिया है। सॉरी सॉरी नॉट दैट, आ गया, हाँ, अनदर सर्जन द रिमूवल ऑफ द गेज व्हाट ही डिस्क्राइब्ड एज फ्लड ऑफ ब्लड, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, डिस्पाइट द डिबैकल, इन सारी चीजों के बावजूद फ्लीस की जो रेपुटेशन है दैट एंड्योर्ड, एंड इवन एमेड फॉरगिविंग, बहुत अच्छी बच्ची बन गई है, ठीक है, इवेंचुअली बिकमिंग अ साइको एनालिस्ट ओवरऑल। नो, ओवरऑल यहाँ पे ये हुआ है यार कि देखो ऑथर ने इतनी सारी चीजें, इतनी सारी पंचायत तो हमें बता दी, एंड में क्या होता है, सर्जरी की उटपटांग रिजल्ट निकल के आते हैं जिसके कारण एमा को बहुत सफर करना पड़ता है, ठीक है। और फिर उसका रिजल्टेंट फैक्टर क्या होता है कि उसका मतलब एमा जो है वो एक साइको एनालिस्ट बन जाती है। सच टॉलरेंस परहैप्स baffling highlights the broader context. As I always say, there is always a but, there is always something more to see, there is always something more to do. The nasogenital hypothesis was congruent with the reigning medical ethos of reflex theory, which posited complex nature arcs of an unconscious linking disparate organs via the spinal cord. The nose with its erectile tissue mirroring that of
genital seemed plausible locus of somatic correspondence. Now, the phenomena of honeymoon rhinitis, nasal congestion triggered sexual arousal. Okay, मतलब honeymoon rhinitis क्या होता है वो बता रहा है. Lent credence to these ideas. Some person came and he published that on nasal genital correlations documenting. I am not gonna read it. ओवरऑल यहाँ पे कुछ फाइंडिंग्स निकल के आई. अरे I'm not accustomed to this, so please pardon my innocence. This is the first time I'm using this feature और जो भी है ये. ओके, यहाँ से कुछ फाइंडिंग्स आती हैं. ठीक है, वो फाइंडिंग्स हमको बताती हैं कि यार इसके फिर फर्दर एप्लीकेशंस कैसे रहे हैं, और इन एप्लीकेशंस के बेसिस पे आगे की जो हमारी थ्योरीज डेवलप हुई हैं वो कैसे होती हैं. ठीक है, ये बताया जाता है. आई डिड नॉट रीड इट एंटायरली. व्हाट आई डिड, हमको यहाँ पे पता था कि यहाँ प्रॉब्लम है, ऑब्वियसली प्रॉब्लम के बाद सॉल्यूशन आएगा, और वो सॉल्यूशन बिना किसी एप्लीकेशन के तो आएगा नहीं, बिना किसी थ्योरी के तो आएगा नहीं, कुछ ना कुछ थ्योरी लेके आएगा वो थ्योरी आपको गिवन है. हैड देयर लाइक इज देयर, इफ देयर इज एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन मेंशन्ड इन द क्वेश्चन सेक्शन, हम वापस आएंगे, इसको पढ़ेंगे, रिलेट करेंगे, और अगर नहीं है आई एम जस्ट गोना स्किप दिस. Historical antecedents bolstered this nasogenital discourse. The physician Sushruta of ancient, okay, Sushruta is considered as the father of Indian surgery. ठीक है, he was the first person who incorporated, who practically what he did, उन्होंने क्या किया था कि मतलब सर्जरी की जाती है जैसे इंसान की, तो उन्होंने एनेस्थेशिया का शायद इजाज किया था. सुश्रुत ने किया था कि किसने किया था? सुश्रुत एनेस्थेशिया 1867 नहीं, 1600s और पहले था. मतलब आई गेस ही वाज इंडियन सर्जरी का तो था ही. ही वाज कंसिडर्ड एज द कौन सी सर्जरी होती है यार, एक और जो काया पलट कर, प्लास्टिक सर्जरी, या प्लास्टिक सर्जरी. तो उन्होंने मतलब अपने एनाटोमिकल और फिजियोलॉजिकल नॉलेज के साथ, ठीक है, जो सर्जिकल प्रोसीजर्स वो करते थे, एंड फ्रॉम व्हाट आई कैन रिकॉल आई गेस उन्होंने कुछ 250 की 250-300 कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स किए थे अपने लाइफ में. ठीक है, एंड इनके ऊपर एक बुक भी है, सुश्रुत संहिता, अगर आप लोग को समय मिले बिल्कुल पढ़ना, अभी नहीं, कैट के बाद. ठीक है, एनीवेज, the physician Sushruta of ancient India had linked nasal trauma to reproductive dysfunction, and classical authors such as नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना, ये भी नहीं पढ़ना, ये भी नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना. Experiments in 1912 excising nasal tissue from rabbits reportedly stunted genital development, reinforcing suspicions of system interdependence. Well, into the 20th century, such data were earnestly discussed in peer-reviewed otolaryngological journals. I don't know what the fuck does this mean, nor am I concerned about this. Indicating that what now seems folly once possessed a patina of scientific legitimacy. A solemn reminder that the border between innovation and delusion can be tragically porous. मतलब हमारा ऑथर अब क्या स्टांस ले रहा है यहाँ पे, उसने सारी चीजें बताई, बताता है कि यार कुछ थ्योरीज आती है, कुछ आइडियाज आते हैं, ठीक है, उन थ्योरीज आइडियाज के हिसाब से डॉक्टर्स क्या करते हैं, अपने आगे के एक्शंस को डिसाइफर करते हैं. एंड में क्या करता है ये ऑथर जो है हमारा, वो बोलता है कि यार देख, पहले की जो मेडिकल हिस्ट्री थी, ठीक है, नाउ व्हाई डिड आई से पहले की, सिद्धांत कमिंग टुवर्ड्स यू बडी, आई न्यू व्हाट सुश्रुत इज. कहाँ से पता है? एक्सटर्नल रीडिंग. हमें पता है कि भाई सुश्रुत ने क्या किया था, हमें पता है कि उसने कुछ 250 से 300 कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स किए रहे होंगे या किए थे. हमें ये भी पता है दैट ही इज द प्लास्टिक सर्जरी का बाप इन इंडिया, ही इज द फादर ऑफ इंडियन सर्जरी. हमें ये सारी चीजें पता है. ठीक है, तो प्लास्टिक सर्जरी कितनी पुरानी है, इंडियन सर्जरी कितनी पुरानी है,
ये सारी चीजें हमको पहले से पता थी, विच इज वाई आई एम सेइंग कि यार यहाँ पे एक हिस्टोरिकल उसने कंटेक्स्ट डालने की कोशिश की है कि भाई मेडिकल हिस्ट्रीज में देखो ऐसी चीजें रही आई हैं, ठीक है। एंड दे समहाउ हैव सपोर्टेड कि यार देख आपका जो पूरा बॉडी का फीचर है, ठीक है, आपकी जो ह्यूमन बॉडी है ना, वो पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी इज समहाउ रिलेटेड, ये जो आपकी ह्यूमन बॉडी है वो कहीं ना कहीं रिलेटेड है किसी ना किसी तरीके से। आपका ये जो है ये पूरा मतलब जो आपके वेन्स रहते हैं ना, अगर आप देखोगे एक एमआरआई स्कैन अगर देखोगे कभी, तो आपको पता चलेगा कि यार आइडियली एक ह्यूमन बॉडी होती कैसी है। दिस इज व्हाट ही डिड। उसने बोला कि भाई ये नेसल कैविटी जो है ना आपकी, ये कहीं ना कहीं आपके पूरे सिस्टम से लिंक है। एंड सिंस दिस इज द मेन पार्ट, ये आपको अगर देखो नहीं पता तो इसको ब्रह्मरंध्र कहा जाता है, ये वाला पार्ट, दिस इज ब्रह्मरंध्र, ठीक है। ये होता है, चक्र रहते हैं अलग, छोड़ो वो अलग पॉइंट चला जाएगा, फिर उसमें नहीं जाते। ओवरऑल बस यही बताया गया है ऑथर उनके हिस्टोरिकल एनालिसिस ले आता है, ठीक है, और बताता है कि यार पहले से ये सारी चीजें चली आ रही, कोई अभी का आइडिया नहीं है। दिस इज व्हाट दिस एंटायर आर्टिकल वाज अबाउट। अगर हमको इसका एक क्रक्स निकालना है कि यार आर्टिकल कह क्या रहा था या पैसेज कह क्या रहा था, ठीक है, आई वुड से उसने एक कंटेक्स्ट लिया है किसी औरत का, किसी महिला का, किसी पर्सन का, आई वुड से, ठीक है, कि कैसे उसकी सर्जरी होती है, ठीक है। फिर वो सर्जरी हालांकि एक थ्योरी पर डिपेंडेंट थी, फिर उसके कुछ रिजल्ट्स जो रहे वो कैटास्ट्रॉफिक हो जाते हैं, ठीक है, और आगे जाके उसको प्रमोशन मिलता है कि हाँ सर्जरी होगी, सर्जरी हो गई, लेकिन बाद में जाके उसके कुछ लाइक अलग रिजल्ट्स रहे जो कि ऑब्वियसली बहुत प्रॉब्लमैटिक थे, जिनमें काफ़ी सारी बहस भी हुई है, ठीक है। एंड देन व्हाट हैपेंस, जिस पर्सन के साथ ये होता है, इवेंचुअली दैट पर्सन बिकम्स साइको एनालिस्ट। एंड डिस्पाइट ऑल ऑफ दीज थिंग्स व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पार्ट इज कि यार देखो ये सारी चीज़ें जो है ये अभी की नहीं है, काफ़ी पहले से ये चला आ रहा है, ठीक है। इसके बारे में हमारे पास काफ़ी सारे हिस्टोरिकल टेक्सचुअल मैन्युस्क्रिप्ट्स भी हैं, मतलब वो जो फिजिशियन सुश्रुत वाले पार्ट से आई एम डिसाइफरिंग दिस, ठीक है। दिस इज व्हाट दिस एंटायर आर्टिकल वाज अबाउट। आई होप एवरीथिंग दैट आई हैव taught you in today's class you guys have noted that down in your mind और इन योर कॉपीज, क्योंकि कैट के दिन ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हिट बैक करेंगे एक साथ। आई वांट कि ये ऑर्गेनाइज्ड मैनर में आप लोग के दिमाग में आए। गाइस एम आई क्लियर? यस सर। ओके, चलो बताओ क्या डाउट है अब।